Hello and good morning to all of you, dear students. Myself, Uma Shri Mathur from Kohinoor Kids Secondary School Academy, Neemka, Thana. Dear students, here is the book of Environmental Studies for class 5th, Apna Parivesh. And today we will read and discuss about our chapter 15, Eat When You Need. Dear students, in this chapter, we read about why did the food get spoiled and food get spoiled and food hygiene, and today we will read and discuss about food hygiene and do not leave food, it means do not waste food, methods of preservation, etc. So now we are starting our part third of this chapter. Before starting our new topic, we recall again once about food hygiene. Food hygiene. In summer season, food spoils at a faster rate because of high temperature. The microorganism remains active. To prevent the food from spoiling, we cover it with a sieve and keep it in a cool place. If a refrigerator is there, then we keep the food in it. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि समर सीज़न में जो है फूड वो बहुत तेज़ी से ख़राब होने लगता है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इस फूड को जो है स्पॉइल होने से बचाने के लिए हमें इसको जो है एक चलनी से कवर कर देना चाहिए और उसको ठंडी जगह पर रख देना चाहिए। अगर आपके पास कोई रेफ्रिजरेटर अवेलेबल है तब भी आप जो है फूड को इसमें रख के और प्रिजर्व कर सकते हैं और उसको स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। After some time, the hawkers came again. Harpreet and Raji again asked to buy something from them. Their father made them understand that we should not eat the food items prepared outside, as those people do not maintain cleanliness and proper food hygiene. थोड़े समय बाद है जो फेरी वाले हैं फिर वो बेचने के लिए अपना सामान आ गए और हरप्रीत और राजी फिर से अपने पापा से जिद करने लगे, अपने पेरेंट्स से, कि वो उनसे कुछ ना कुछ खरीदे। उनके पापा ने तब उनको समझाया कि हमें जो है इन फूड फेरी वालों से और बाहर से बनने वाले फूड आइटम्स को नहीं खरीदना चाहिए और यूज़ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग हैं वो क्लीनिनेस को मेंटेन नहीं करते हैं और तो प्रॉपर जो फूड हाइजीन है यानी खाना बनाने के समय जो स्वच्छता हमें बरतनी चाहिए वो इसको यूज़ नहीं करते हैं और ये जो है जैसे फूड को अनकवर्ड छोड़ देते हैं, गंदा पानी भी यूज़ कर लेते हैं। तो हमें इस तरह के फूड जो वेंडर्स या हॉकर्स हैं उनसे फूड खरीदने से बचना चाहिए। हाँ, पॉइंट्स फॉर डिस्कशन: हाउ डू वी मेंटेन क्लीनलीनेस एंड फूड हाइजीन वाइल कुकिंग एट होम। हमें किस तरह से जो है क्लीनलीनेस को मेंटेन करना चाहिए और फूड हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए जब हम घर पर खाना बनाएं तब। We maintain cleanliness and proper food hygiene by basis of washing of vegetables, cleanliness of the surrounding areas, washing of hands, water use for preparation of food, cleanliness of utensils, food is stored in covered container or open etc. तो हम जो है फूड जब हम होम पे बना रहे हो तो हम जो है क्लीनिनेस और प्रॉपर फूड हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। हमें जो है जब हम फूड मेक कर रहे हैं तो हमें वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए और जो है सराउंडिंग्स जहाँ हम खाना बना रहे हैं वो एरिया भी जो है क्लीन होना चाहिए। आपके जो हैंड्स हैं वो वॉश हुए हुए होने चाहिए और जो वाटर आप यूज़ कर रहे हैं फूड प्रिपरेशन के लिए वो क्लीन वाटर हो और जैसे आप जो यूटेंसिल्स यानी बर्तन जो यूज़ कर रहे हैं वो भी क्लीन हो और फूड को हमें हमेशा कवर्ड करके रखना चाहिए किसी कंटेनर में और जो है
हमें फूड को कभी भी ओपन नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से हम हैं जब घर पे कुकिंग कर रहे हो तो फूड हाइजीन और क्लीननेस का ध्यान रख सकते हैं। Do not leave food. Do not leave food. After a long journey, everyone reached grandma's house. All were very happy after meeting her. At the time of dinner, everyone ate the vegetable, sangri, curry rice, lady finger, chapati, salad, etc. But the children left some food in their plates. Their grandfather made them understand that we should never leave the leftover food. This results in wastage of food. We should take only that much quantity of food in our dish which we actually want to eat. Ultimately, this will help in saving of the grains and cereals of our country. खाना खाने के बाद एक लंबी यात्रा के बाद जो है वो लोग हैं सभी लोग पहुंच गए ग्रैंड माँ के हाउस में, यानी दादी माँ के घर पहुंच चुके थे और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। मिलने जुलने के बाद उन लोगों ने जो है अब डिनर का टाइम हो चुका था तो इन लोगों ने डिनर लेना शुरू किया। सभी ने जो है सांगरी की सब्जी, कढ़ी और राइस, कढ़ी और चावल और लेडी फिंगर यानी भिंडी की सब्जी, चपाती, सलाद सब कुछ लिया। लेकिन बच्चों ने जो है बचा हुआ खाना अपनी प्लेट्स में, डिशेस में छोड़ दिया। उनके ग्रैंडफादर ने उनको समझाया कि हमें कभी भी जो है लेफ्ट ओवर फूड को लेफ्ट ओवर नहीं करना चाहिए, यानी कि कभी भी प्लेट में खाना झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। इसका रिजल्ट ये होता है कि फूड वेस्ट होता है और हमें जो है टेक ओनली, हमें केवल जो है प्लेट में उतना ही फूड लेना चाहिए, उतनी ही क्वांटिटी में फूड लेना चाहिए जितना कि हम एक्चुअल में खा सकते हैं या हमें ज़रूरत होती है खाने की। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये होता है कि दिस विल हेल्प इन सेविंग ऑफ ग्रेन्स। अगर हम जो है फूड को वेस्ट नहीं करेंगे तो इससे जो है ग्रेन्स और सैरल्स है हमारी कंट्री में वो सेव होंगे। तो इसका जो कंक्लूजन है चैप्टर का इस तरह से है कि हमें जो है फूड को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में हम जितना खाना चाहते हैं उतना ही हमें प्लेट में लेना चाहिए, जिससे कि देश में और लोगों के लिए भी ग्रेन्स और सैरल्स की जो है बचत की जा सके और फूड को कभी भी लेफ्ट ओवर ना छोड़ें। इट मीन्स उसको फूड को प्लेट में लेने के बाद कभी झूठा ना छोड़ें, उतना ही लें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है ईटिंग की। Think and write the answers of the following. You must have visited any marriage party, religious function, etc. many times. Why there is more wastage of food at these collective occasions? आप जो है कई बार जो है मैरिज पार्टी में या फिर किसी पार्टी में या किसी धार्मिक फंक्शन में जब जाते हैं तो आप कई बार देखते हैं कि यहाँ पे जो है इस तरह के जो ऑकेजन्स होते हैं, जो कलेक्टिव ऑकेजन्स होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड की वेस्टेज होती है। इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स कि व्हेन वी विजिट any marriage party, religious function, etc. many times we see that there is more wastage of food because people take more quantity of food in their plates. तो जो है जो लोग हैं वो यहाँ पर जैसे पार्टी वगैरह किसी आयोजन में जब वो जाते हैं तो वो अपनी खाने की जो क्षमता होती है उससे ज़्यादा फूड अपनी प्लेट में लेते हैं और इस तरह से फूड जो है ऐसी प्लेसेस पर ज़्यादा वेस्ट होता है। ऑब्जर्व फिगर 15.3 एनिमल्स ईटिंग वेस्ट फूड। जब बहुत ज़्यादा फूड जब हम वेस्ट करते हैं, इस तरह के जो ऑकेजन्स होते हैं जब इसमें बहुत ज़्यादा फूड वेस्टेज होता है तो ये जो लेफ्ट ओवर फूड होता है वो एनिमल्स को डाल दिया जाता है और एनिमल इस फूड को खाते हैं क्योंकि उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रह जाती है, वो फूड है वो वेस्ट हो जाता है और उसको ह्यूमन जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें जो है
जो कलेक्टिवली जो ऑकेजन्स होते हैं, उन पे उनमें जाते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपनी प्लेट में उतना ही फूड लें जितना कि हम फिनिश कर सकते हैं और फूड को लेफ्ट ओवर ना छोड़ें। मेथड्स ऑफ प्रेजर्वेशन यानी मेथड्स ऑफ प्रेजर्वेशन यानी फूड को प्रेजर्व करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के तरीके। Fruits, vegetables and cooked food spoil if they are stored for a long time. The microorganisms and fungus develop on them and contaminate that food. If we consume the contaminated food, we fall ill. In refrigerator also, this food remains fresh for some time only. To protect the food from getting spoiled and store it for a long time, we adopt many methods as to make a marmalade by mixing sugar, make a thick syrup, it means sharbat, and make a pickle by adding salt, vinegar and oil. We preserve the food items like ladyfinger, cluster beans, it means guacamole, fenugreek, it means methi, mint, pudina, potato chips, etc. by drying them in sunlight. Canned or sealed food does not spoil because it is vacuum packed. The use of some chemicals, reagents can save and preserve food for a long time. So dear students, तो मेथड्स ऑफ प्रेजर्वेशन यानी कि फूड को प्रेजर्व करने के, सुरक्षित करने के मेथड्स हैं यहाँ पर। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कुक्ड फूड है वो स्पॉइल हो जाते हैं अगर उनको हमें एक लंबे समय के लिए हम उनको प्रेजर्व कर देते हैं या लंबे समय के लिए हम उनको यूज़ में लेना चाहते हैं, लेकिन वो ख़राब हो जाते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फंगस डेवलप ऑन देम, उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगस है वो आ जाती है और वो ख़राब हो जाते हैं। अगर हम इस तरह का जो ख़राब कंटेमिनेटेड फूड है उसको हम यूज़ करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। रेफ्रिजरेटर में भी जो है फूड जो है वो कुछ समय के लिए ही जो है प्रेजर्व किया जा सकता है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर में भी जो है फूड आइटम्स है वो स्पॉइल होना शुरू हो जाते हैं। इनको फूड आइटम्स को जो है स्पॉइल होने से बचाने के लिए हम इनको स्टोर करने के लिए जो है लंबे समय के लिए हम कई तरह के मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि उनका मार्मेलेड बना लेते हैं बाय मिक्सिंग शुगर मेक ए थिक सिरप। उसका मार्मेलेड यानी उनको मुरब्बा बनाकर हम उनको संरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा जो है उनका थिक सिरप यानी शरबत बनाकर हम उनको प्रेजर्व कर सकते हैं और उसको पिकल बना दिया जाता है। जैसे फूड आइटम्स को जो अनराइप होते हैं उनमें एडिंग साल्ट, उसमें जो है साल्ट, विनेगर और ऑयल मिला के हम उनका पिकल यानी अचार बनाकर उनको सुरक्षित कर सकते हैं। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं फूड आइटम्स कि हम उनको प्रेजर्व कर सकते हैं, जैसे लेडी फिंगर है, क्लस्टर बीन्स हैं और फेनुग्रीक है, मिंट है, पोटैटो चिप्स हैं। इन सबको हम जो है सनलाइट में सुखाकर और इनको प्रेजर्व कर सकते हैं। और कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको केन्ड या सील्ड जो फूड आइटम्स होते हैं ना वो बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होते हैं क्योंकि उनके अंदर वैक्यूम पैक्ड होता है। तो हम भी जो वैक्यूम पैक्ड कंटेनर्स जो होते हैं उनमें फूड को रख के और उनको लंबे समय के लिए प्रेजर्व कर सकते हैं। कुछ केमिकल्स और रीएजेंट्स जो हैं उनको भी फूड में मिक्स करके और उनको फूड को जो है स्पॉइल होने से सेव किया जा सकता है और उनको प्रेजर्व किया जा सकता है लंबे समय के लिए। तो फूड प्रेजर्वेशन के कई मेथड्स हैं, जैसे बाय मिक्सिंग शुगर, बाय मिक्सिंग साल्ट और विनेगर एंड ऑयल, dry them in sunlight and save them in vacuum packed and mixing by chemicals, reagents, etc. Dear students, here is a table given for you, so explore and answer the following. Write the methods of preservation of the below given food materials. You can add more examples if you want.
नीचे एक टेबल दी हुई है, वहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दिए हैं, आपको उनके प्रिजर्वेशन के मेथड बताने हैं। आप चाहें तो मोर एग्जाम्पल और ज़्यादा एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स और यहाँ हैं मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। तो पोटैटो चिप्स हैं, पोटैटो चिप्स को हम ड्राइड इन सनलाइट, है ना, बाय मेकिंग चिप्स। पोटैटो चिप्स को जो है हम सनलाइट में सुखा के जो प्रिजर्व कर सकते हैं। मैंगो पिकल हैं, उसमें हम बाय एडिंग ऑयल एंड बाय मेकिंग मार्मेलेड एंड बाय मेकिंग शरबत, इस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। क्लस्टर बीन्स है, यानी कि जिनको कि गंवारफली बोला जाता है, इनको हम सनलाइट में ड्राइड करके प्रिजर्व कर सकते हैं। और पीज यानी मटर, मटर को भी हम सनलाइट में जो है ड्राइड करके और प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा है सैरल्स, सैरल्स को भी हम सनलाइट में ड्राई करके और प्रिजर्व कर सकते हैं। द लंच एवरीबडी वेंट टू विजिट द आमेर फोर्ट। लंच करने के बाद सब लोग हैं आमेर फोर्ट घूमने के लिए गए। देयर दे सॉ मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स ऑन द फ्रूट जूस शॉप। वहाँ पे उन्होंने कई तरह के फ्रूट्स हैं वो जो है फ्रूट जूस की शॉप में देखे। हरप्रीत वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड टू सी कैरेट, एप्पल्स एंड चेरी एंड said these fruits are available in summer season also। तो जब हरप्रीत ने वहाँ पर कई तरह के फ्रूट्स देखे तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि क्या कैरेट, एप्पल और चेरी हैं वो समर सीजन में भी मिलती हैं। His grandfather told him that nowadays all kinds of fruits and vegetables are available in all the season। उसके दादाजी ने उसको बताया कि अब जो है इन दिनों हैं सभी तरह के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो हर सीज़न में हमें अवेलेबल हो जाते हैं। डिस्कस एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको डिस्कस करना है और आंसर देना है इन क्वेश्चंस के। विच अनसीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन योर विलेज सिटी। किस तरह के जो अनसीजनल फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं वो आपकी सिटी या विलेज में हर समय अवेलेबल होते हैं बिना सीजन के भी। तो इसको आप डिस्कस करेंगे और फिर इसका आंसर राइट करना है आपको। हियर इज ए मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ गूसबेरीज, इट मीन्स आंवला। यहाँ पर जो है आपको प्रिपरेशन दी हुई है चूर्ण बनाने की, जो कि गूसबेरीज यानी आंवला से बनता है। वॉश 10 to 15 Indian gooseberries, it means आंवला, properly and dry them. Grate these gooseberries. Now cover these grated gooseberries with a thin cloth and dry them. They will dry completely in 2-3 days. Grind the dried gooseberries. Mix an equal quantity of finally brown sugar in this churn. You can add salt and ground cumin seeds too. If you want, you can relish this churn for the whole year। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है गूसबेरीज यानी आंवले से आपको चूर्ण बनाने की जो मेथड यहाँ पर दिया हुआ है, और एक तरह से ये जो है गूसबेरीज को प्रिजर्व करने का मेथड है। तो आपको 10 से 15 इंडियन गूसबेरीज यानी जो आंवला है उनको अच्छे से सुखा लेने हैं धोकर, और फिर उनको अच्छे से कस लेना है। कसने के बाद आप इनको कवर करेंगे, इन कसी हुई जो गूसबेरीज हैं इनको आप कवर करेंगे एक पतले कपड़े से, और जो है इनको सूखने के लिए रख देंगे। दे विल ड्राई कम्प्लीट इन 2-3 डेज। ये 2 से 3 दिन में लगभग पूरे अच्छे तरह से सूख जाएंगे। अब ये जो ड्राइड गूसबेरीज जो हैं उसको हमें ग्राइंड कर लेना है यानी पीस लेना है। इसके अंदर इसी के बराबर की मात्रा में जो है हमें ब्राउन शुगर डाल देनी है, और इससे ये जो है चूर्ण तैयार हो जाएगा। आप इसमें साल्ट और ग्राउंड क्यूमिन यानी कि अजवाइन भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो। और इस चूर्ण को जो है आप पूरे साल भर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है स्पॉइल नहीं होगा। Dear students, in this chapter we learnt that the microorganisms are responsible for spoiling and contamination of food.
तो इस चैप्टर में हमने रीड किया कि जो फूड को स्पॉइल होने का जो मेन कारण है या उसको कंटिमिनेशन यानी उसके गंदे होने का जो मेन कारण है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि समर सीजन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और फूड को फास्टर रेट से जो है स्पॉइल करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द फूड आइटम सोल्ड इन द मार्केट आर नॉट हाइजीन। दूसरी बात ये है, सेकंड जो पॉइंट है वो हमें बता रहा है कि फूड आइटम जो कि मार्केट में प्रिपेयर हमें मिलते हैं और हम उन्हें खाना बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, वो हाइजीनिक नहीं होते हैं। थर्ड वाला जो पॉइंट है, वी शुड टेक ओनली दैट मच फूड इन आवर डिश विच वी वांट टू ईट। हमें केवल वो ही फूड आइटम उतनी ही क्वांटिटी में लेना चाहिए अपने डिश में जो कि हम पूरी तरह से फिनिश कर सकें, यानी जितना हम खाना चाहते हैं उतना ही हमें अपनी प्लेट में लेना चाहिए और फूड को लेफ्ट ओवर नहीं छोड़ना चाहिए। द फूड मटीरियल कैन बी प्रेजर्व इन मैनी डिफरेंट वेज। और फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो हमें बता रहा है कि फूड मटेरियल्स हैं उनको हम कई तरह से है जो प्रेजर्व कर सकते हैं, यानी डिफरेंट वे में हम उनको प्रेजर्व कर सकते हैं। इट मीन्स ये भी हुआ कि फूड जो मटेरियल है उनको प्रेजर्व करने के कई मेथड्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज क्वेश्चन लर्न, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल। यहाँ पे क्वेश्चंस है वो इस तरह से हैं, तो सिर्फ अंडरस्टूड करवाऊंगी। राइट द नेम्स ऑफ द 3 थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर प्रेजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल। कोई भी जो 3 नेम्स हैं, किसी भी चीज कोई भी 3 थिंग्स हैं जिनको कि हम प्रेजर्व कर सकते हैं फूड मटेरियल, उनके आपको नेम बताने हैं जिनको हम प्रेजर्व कर सकते हैं। विच सब्सटेंसेज आर यूज टू प्रेजर्व लेमन पिकल। लेमन पिकल को जो है प्रेजर्व करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है। और नेक्स्ट है व्हाट मेजर विल यू टेक टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड। फूड को वेस्टेज होने से बचाने के लिए आप क्या सावधानियां बरतेंगे या आप क्या जो है किन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अवर part 3rd of chapter 15 is completed. Thank you for observing and watching my lesson plan. Have a good day. Thank you.